हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉक्लेवर। आज के इस पॉडकास्ट में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के 23 दिसंबर 2025 के दोनों डेली एडिटोरियल्स को डिकोड करेंगे, सेंटेंस बाय सेंटेंस, इंग्लिश और हिंदी में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इन एडिटोरियल्स में जो भी इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज हैं उनकी प्रीमियम पीडीएफ आपको हमारे स्कॉक्लेवर टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। माई एडवाइस टू यू इज, अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन समझ ना आए तो फील फ्री टू पॉज एंड एनालाइज द सेंटेंसेस। हो सके तो मीनिंग समझने के बाद उस सेंटेंस को 2 बार जोर से पढ़िए। इफ बिगिनर्स फॉलो दिस, trust me, you will drastically improve your English knowledge in just 6 months. So let's begin with our first editorial. इसका टाइटल है स्टेप अप ऑन कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आगे बढ़िए कॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। CSR as corporate obligation can support costs of restoring grasslands। इसका मतलब है कि CSR यानी corporate social responsibility को एक corporate obligation यानी कंपनी की जिम्मेदारी के तौर पर देखने से grasslands को रिस्टोर करने का खर्चा उठाया जा सकता है। The December 19 judgment by a Supreme Court bench का December 19 का फैसला, Placing corporate environmental responsibility inside the legal meaning of corporate social responsibility (CSR), जिसमें corporate environmental responsibility को corporate social responsibility (CSR) के कानूनी अर्थ के दायरे में रखा गया है, reframes how the court reads CSR in Indian company law। ये इस बात को एक नया आकार देता है कि कोर्ट भारतीय कंपनी लॉ में CSR को कैसे समझता है। While continuing its attempt since 2021 और साथ ही 2021 से चल रहे अपने प्रयासों को जारी रखता है, to reduce deaths of great Indian bastards from power infrastructure, ताकि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की मौतों को कम किया जा सके। The benches has treated the CSR regime as an enforceable obligation। बेंच ने CSR व्यवस्था को एक लागू की जा सकने वाली जिम्मेदारी माना है, rather than an undertaking at company's discretion, ना कि कंपनियों की मर्जी पर छोड़ा गया एक काम। While also reading social responsibility to include environmental and wildlife protection through the Companies Act itself, और साथ ही social responsibility का अर्थ Companies Act के माध्यम से environmental और wildlife protection को भी शामिल करते हुए पढ़ा है। According to the court, a corporation as a legal person shares the duty under Article 51AG। कोर्ट के अनुसार एक कॉर्पोरेशन एक कानूनी व्यक्ति के तौर पर Article 51AG के तहत कर्तव्य साझा करता है, which means spending CSR funds on environmental measures, जिसका मतलब है कि CSR funds को environmental measures पर खर्च करना। It can be framed as discharging one's constitutional obligation rather than engaging in charity। इसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के रूप में देखा जा सकता है, ना कि चैरिटी करने के रूप में। For Great Indian Bastards के लिए the court has thus strengthened the legal basis for conservationists। कोर्ट ने इस तरह conservationists यानी संरक्षणवादियों के लिए कानूनी आधार को मजबूत किया है। To demand corporate financing for projects to recover species endangered by corporate activity, ताकि वे corporate activity से खतरे में पड़ी प्रजातियों को बचाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए corporate financing की मांग कर सकें। The court's 2021 interim order restricted overhead transmission lines across 99,000 square kilometer। कोर्ट के 2021 के अंतरिम आदेश ने 99,000 स्क्वायर किलोमीटर में ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस पर रोक लगा दी थी, and required a committee-led approach to feasibility and undergrounding, और feasibility तथा undergrounding के लिए एक committee-led approach की मांग की थी। यहाँ पर एक शब्द है feasibility। feasibility का मतलब है किसी काम के किए जा सकने की संभावना या practicality, मतलब क्या ये काम possible है या नहीं। In 2024 it constituted an expert committee। 2024 में इसने एक expert committee का गठन किया to balance species protection with climate commitments and renewable energy build-out, ताकि प्रजातियों के संरक्षण को climate commitments और renewable energy के निर्माण के साथ बैलेंस किया जा सके, which the new order has now operationalized, जिसे नए आदेश ने अब लागू कर दिया है। If CSR and project-linked financing become easier to compel, अगर CSR और project-linked financing को मजबूर करना आसान हो जाता है, they can support the recurring costs of breeding and releasing chicks, तो वे chicks के प्रजनन और उन्हें छोड़ने के बार-बार होने वाले खर्चों में मदद कर सकते हैं। And of restoring grasslands and maintaining them, और grasslands को restore करने और उन्हें बनाए रखने में भी।
However, the verdict is also a legal interpretation. हालांकि ये फैसला एक कानूनी व्याख्या भी है. It does not specify which companies must pay how much, where, when and with what audit trail. ये नहीं बताता कि किन कंपनियों को कितना, कहां, कब और किस ऑडिट ट्रेल के साथ भुगतान करना है. The penalty for non-compliance will remain according to existing provisions. Non-compliance यानी नियमों का पालन ना करने पर जुर्माना मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ही रहेगा. The court's shift from a large area approach as in its 2021 order, कोर्ट का 2021 के आदेश की तरह एक large area approach से हटना, to revised priority areas और revised priority areas की ओर बढ़ना, also reduces conflict with renewable energy deployments. Renewable energy deployments के साथ टकराव को भी कम करता है, while pushing some of the onus to the accurate mapping of habitats. जबकि इसका कुछ onus यानी जिम्मेदारी habitats की सटीक मैपिंग पर भी डालता है. The judgment improves the legal position for getting companies to pay for prevention and recovery. ये फैसला प्रिवेंशन और रिकवरी के लिए कंपनियों से भुगतान करवाने की कानूनी स्थिति में सुधार करता है. And specifies a narrower but more detailed habitat and infrastructure plan. और एक संकीर्ण लेकिन ज्यादा विस्तृत habitat और infrastructure plan बताता है. Whether it is sufficient will depend less on what doctrine it announces. ये पर्याप्त है या नहीं, ये इस बात पर कम निर्भर करेगा कि ये किस सिद्धांत की घोषणा करता है. And more on whether governments and utilities can deliver the undergrounding and rerouting work at the required pace. और इस बात पर ज्यादा निर्भर करेगा कि क्या सरकारें और यूटिलिटी कंपनियां अंडरग्राउंडिंग और रीरूटिंग का काम जरूरी गति से कर सकती हैं. And whether corporate funding translates to outcomes on the ground. और क्या corporate funding से जमीनी स्तर पर परिणाम मिलते हैं. तो इस एडिटोरियल का टोन क्या था? द टोन ऑफ दिस एडिटोरियल इज एनालिटिकल. ये एनालिटिकल इसलिए है क्योंकि लेखक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विश्लेषण कर रहा है, उसके लीगल इम्प्लीकेशंस और प्रैक्टिकल चैलेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा है, बिना ज्यादा इमोशनल हुए. इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड इन्फॉर्मेटिव पीस. हे गाइस, नेहा हियर अगेन. एक छोटा सा पर सुपर इंपॉर्टेंट ब्रेक. क्या आप वोकैब्युलरी, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स याद करते करते थक गए हैं? एंड डू दे जस्ट poof vanish from your memory? Well, not anymore. Score Clever ने Google Play Store पर अपना ऐप लॉन्च कर दिया है जो आपकी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर देगा. We have a unique learning technique जो आपको कॉन्सेप्ट्स को एक बार सीखने में मदद करेगी and you will never forget them. Yes, you heard it right. एक बार पढ़ो और हमेशा के लिए याद रखो. So, what are you waiting for? Go download the Score Clever app now. Also, हमारा ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है? प्लीज हमें कमेंट्स में बताइए. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू क्रिएट दिस फॉर यू, सो प्लीज हमें अपना सपोर्ट दिखाइए बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल. योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड टू अस. चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ. इसका टाइटल है अनरेस्ट अनलिमिटेड ऑन द क्राइसिस इन बांग्लादेश, मतलब असीमित अशांति बांग्लादेश के संकट पर. Mohammad Yunus lacks the legitimacy to steer Bangladesh through the latest crisis. मतलब मोहम्मद यूनुस के पास बांग्लादेश को इस ताज़ा संकट से बाहर निकालने के लिए लेजिटिमेसी यानी वैधता की कमी है. The violent unrest that rocked Bangladesh on Thursday night, गुरुवार रात बांग्लादेश को हिलाकर रख देने वाली हिंसक अशांति, Following the death of Sharif Usman Hadi, Sharif Usman Hadi की मौत के बाद, a prominent youth leader of the July 2024 uprising against Prime Minister Sheikh Hasina's government, जो Prime Minister Sheikh Hasina की सरकार के खिलाफ जुलाई 2024 के विद्रोह के एक प्रमुख युवा नेता थे, was both a reflection of where the country stands today and a warning of what lies ahead. ये इस बात का प्रतिबिंब था कि देश आज कहाँ खड़ा है और आगे क्या होने वाला है, इसकी चेतावनी भी. हदी, एन इस्लामिस्ट एंड अ विरुलेंट क्रिटिक ऑफ इंडिया. हदी एक इस्लामिस्ट और भारत के एक विरुलेंट यानी जबरदस्त या कटु आलोचक, प्लेड अ की रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द जुलाई अपराइजिंग इनटू अ ब्रॉडर मूवमेंट एम्ड एट रीमेकिंग द कंट्री. उन्होंने जुलाई के विद्रोह को देश को फिर से बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक आंदोलन में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. He sought a decisive break from Bangladesh's liberation era values. उन्होंने बांग्लादेश के मुक्तिकाल के मूल्यों से एक निर्णायक अलगाव चाहा and advocated greater political space for parties such as जमात-ए-इस्लामी as well as for Islamist student groups. और जमात-ए-इस्लामी जैसी पार्टियों के साथ-साथ इस्लामिस्ट छात्र समूहों के लिए ज्यादा राजनीतिक जगह की वकालत की.
हदी was shot by masked gunmen on December 12. हदी को 12 दिसंबर को नकाबपोश बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी and succumbed to injuries on December 18 at a hospital in Singapore. और 18 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। Succumbed का मतलब होता है हार मान लेना या किसी चीज के आगे झुक जाना। यहाँ इसका मतलब है चोटों की वजह से मर जाना। ट्रिगरिंग वाइडस्प्रेड प्रोटेस्ट्स अक्रॉस बांग्लादेश, जिससे पूरे बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। Although the police have arrested at least half a dozen suspects in connection with the attack, हालांकि पुलिस ने हमले के सिलसिले में कम से कम आधा दर्जन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, it remains unclear who orchestrated the killing. ये अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस हत्या की साजिश किसने रची। Some of Hadi's supporters blamed the Awami League. हदी के कुछ समर्थकों ने अवामी लीग को दोषी ठहराया। On December 18, mobs torched the offices of Pratham Alo and the Daily Star. 18 दिसंबर को भीड़ ने प्रथम अलो और द डेली स्टार के दफ्तरों में आग लगा दी, जो देश के 2 सबसे बड़े डेली न्यूज़पेपर हैं, जिससे कर्मचारी अंदर फंस गए। कल्चरल सेंटर्स, अवामी लीग ऑफिसेज, द होम्स ऑफ फॉर्मर मिनिस्टर्स, सांस्कृतिक केंद्र, अवामी लीग के कार्यालय, पूर्व मंत्रियों के घर एंड इवन द रेजिडेंस ऑफ मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश's लिबरेशन हीरो, वर अटैक्ड। और यहाँ तक कि बांग्लादेश के मुक्ति नायक मुजीबुर रहमान के आवास पर भी हमला किया गया। In Mymensingh city, a Hindu man aged 25 was lynched over alleged blasphemy. Mymensingh शहर में एक 25 वर्षीय हिंदू व्यक्ति को कथित ब्लास्फेमी यानी ईश निंदा के आरोप में लिंच कर दिया गया। लिंच्ड का मतलब होता है भीड़ द्वारा किसी को बिना कानूनी सुनवाई के मार डालना। As a crowd cheered and filmed while his hanging body was set on fire. जबकि भीड़ ने जयकारे लगाए और वीडियो बनाया जब उसके लटकते हुए शरीर में आग लगा दी गई। 15 months after Miss Hasina was toppled, सुश्री हसीना के टॉपल्ड यानी सत्ता से हटाए जाने के 15 महीने बाद बांग्लादेश continues to reel under mob rule. बांग्लादेश अभी भी भीड़ के शासन से जूझ रहा है। Miss Hasina's authoritarianism undoubtedly contributed to the eruption of public anger in July 2024. सुश्री हसीना के तानाशाही रवैये ने निःसंदेह जुलाई 2024 में जनता के गुस्से को भड़काने में योगदान दिया। Her fall offered Bangladesh a chance to begin anew. उनके पतन ने बांग्लादेश को एक नई शुरुआत करने का मौका दिया, grounded in reconciliation, pluralism and democracy, जो सुलह, बहुलवाद और लोकतंत्र पर आधारित हो। That opportunity has since been squandered. वो अवसर तब से बर्बाद कर दिया गया है। The period following the uprising saw widespread violence against minorities and Awami League workers. विद्रोह के बाद के समय में अल्पसंख्यकों और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के खिलाफ व्यापक हिंसा देखी गई। The Awami League and its student wing the Chhatra League were banned. अवामी लीग और उसकी छात्र शाखा छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, while the ban on जमात-ए-इस्लामी was lifted, जबकि जमात-ए-इस्लामी पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। Muhammad Yunus failed to keep Islamist forces who have a dark past in check. मोहम्मद यूनिस इस्लामिस्ट ताकतों को, जिनका एक अंधकारमय अतीत है, नियंत्रण में रखने में विफल रहे, even as reactionary groups pressed for a total rupture with the immediate past. जबकि प्रतिक्रियावादी समूह तत्काल अतीत से पूरी तरह से संबंध तोड़ने के लिए दबाव डाल रहे थे। The result has been near anarchy. इसका परिणाम लगभग अराजकता की स्थिति रही है। Anti-India sentiments amplified by Islamist forces have further inflamed tensions. इस्लामिस्ट ताकतों द्वारा बढ़ाई गई भारत विरोधी भावनाओं ने तनाव को और भड़का दिया है। Bangladesh's rulers must heed these warning signs. बांग्लादेश के शासकों को इन चेतावनी संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। The focus must shift from vendetta politics to rebuilding state capacity and restoring law and order. ध्यान वेंडेटा यानी बदले की राजनीति से हटकर राज्य की क्षमता का पुनर्निर्माण करने और कानून व्यवस्था बहाल करने पर जाना चाहिए। Mr. Yunus appears to lack either the legitimacy or the resolve to steer the country through this crisis. ऐसा लगता है कि श्री यूनिस के पास देश को इस संकट से बाहर निकालने के लिए न तो वैधता है और न ही संकल्प। For Bangladesh, the only viable path forward lies in inclusive elections with all the major political parties. बांग्लादेश के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की भागीदारी के साथ समावेशी चुनाव कराना है। तो इस दूसरे एडिटोरियल का टोन क्या है?
द टोन हियर इज क्लियरली क्रिटिकल एंड पेसिमिस्टिक। ये क्रिटिकल है क्योंकि लेखक बांग्लादेश के करंट लीडरशिप और पॉलिटिकल सिचुएशन की कड़ी आलोचना कर रहा है, एंड इट्स पेसिमिस्टिक क्योंकि लेखक भविष्य को लेकर कोई उम्मीद नहीं जता रहा, बल्कि देश की अराजकता और बढ़ते संकट पर चिंता व्यक्त कर रहा है। So that's a wrap for today's editorials. I hope आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। But wait, जाने से पहले एक लास्ट एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। Are you ready to test your vocabulary knowledge? तो ज्वाइन कीजिए स्कॉ क्लेवर का डेली एडिटोरियल वोकैब लीग क्विज। ये है अ IPL फॉर एडिटोरियल वोकैबुलरी, जहां आप compete करते हैं, स्कोर करते हैं और सीखते हैं, all at the same time. क्विज लाइव होता है हर शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसमें दिन के एडिटोरियल्स की सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी कवर की जाती है। वी हैव मंथली लीग्स, स्कोर्स एंड एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स फॉर द विनर्स। तो अपने वोकैब गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जॉइन द वोकैब लीग टुडे। जॉइनिंग लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त नेहा साइनिंग ऑफ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।